So let's review the concept which we studied in the previous lecture. We discussed vectors in n space or Rn. Rn means इसको हम यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं, ठीक है. Euclidean space or n space, just remember it. It has many names. Any vector in Rn, it can be written as x such that x1, x2, so on, xn. Okay, we were discussing about different properties of the elements or the vectors in Rn. Last time we discussed a couple of properties. The first one was commutative property or commutative law. Commutative law. What was commutative law? It was for all x, y belongs to Rn. Okay. The commutative law is x plus y is equal to y plus x. Okay. We also proved this property as well, this law. Basically, the elements of Rn satisfy these properties. Okay, elements means the vectors in Rn. We also discussed the associative law, associative property. Associative property. What was? Again, nobody will tell you that how to prove commutative law or how to prove associative law. You should know it. If I ask you in exam or if someone asks you, prove that associative law, associative property holds in Rn, then how would you proceed? How would you do it? You should know what is associative property. Associative property is that if you have three numbers and you want to add them, then we can add any two elements first. Okay. So this is what the associative property is. So what you have to do, what you have to do, you have to choose for any x, y, z belongs to Rn. ये आपने खुद से चूज करना है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने का आपको पता होना चाहिए तरीका. Whatever the set is this Rn, यहाँ पे अभी हम यूक्लिडियन स्पेस को ले रहे हैं. आगे चल के हम यूक्लिडियन स्पेस के अलावा भी स्पेसेस पढ़ेंगे. मैट्रिक्स की स्पेसेस हैं, पोलिनोमियल स्पेसेस हैं और बहुत सारी स्पेसेस हैं. So you should remember कि associative property क्या है और इसको proof कैसे करना है. Associative property क्या है? Now we are going to write it. For any x, y, z, तीन elements लेंगे Rn में से. Then to prove क्या करना है हमने? x plus y plus z. पहले आप x, y को ऐड करें, बाद में z को ऐड करें, और आप पहले y और z को ऐड करें, बाद में x ऐड करें. दिस शुड बी इक्वल. कोई से दो नंबर तीनों में से आप पहले ऐड करें, बाद में तीसरा ऐड करें, तो दिस शुड बी सेम. दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज वेल, जिसमें क्या आएगा? x, y, z this equal to x, y, z. But here the product of x, y we have still not defined. Product of two elements in Rn अभी हमने define नहीं किया. So this is not possible for the elements in Rn. What we are doing, we are trying to prove this with respect to addition. Binary operation जो है ना, वो define होना चाहिए इसमें. ठीक है. So binary operations जो Rn में हम define करते हैं, जो standard हैं, वो क्या है? मैंने आपको last time बताए थे. What was those operation? That was addition of two elements in Rn. For example, let x, y belongs to Rn. ठीक है. Then x plus y should be defined. x plus y को हमने कैसे define किया था? I assume कि आप लोगों को पता है. हम respective elements को add कर देते हैं. And this was the first binary operation which was already defined, and the second was scalar multiplication. Sir, one question. जी बेटा. Sir, just like in multiplication,
वी हैव टू इंश्योर कि वो दोनों के जो ऑर्डर्स होते हैं वो मैच कर रहे हों. तो अगर एडिशन के अंदर वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 3 into 1 and let's suppose y is 4 into 1, then can we add them by supposing the fourth the thing in the single matrix to be 0? Again, still we are not talking about matrices. When we'll talk about matrix So in terms addition, of scale multiplication, in terms of vectors. देखिए that is valid. अगर आप कहते हैं ना कि a plus b दो matrices हैं, ठीक है, a plus b दो matrices हैं, अगर इनका multiplication हो रहा है x से, तो it is possible ax plus bx. This is what you are talking about. Sir, We can you can't please see the change the screen. camera? Oh, sorry. Camera is not there. यहाँ पे. This is valid. If you have sum of two matrices and you are multiplying a vector with x, with this sum, then you can separate it. This is what you were. Sir, no, sir. Actually, my question is that if you have a vector in 3 dimension and you have a particular point in that frame of reference, and then you have another vector that is in 4 dimensions. No. And We cannot add them. We cannot add okay. them. Elements Okay. should belongs to the same space. It is not Right, sir. possible कि आपके पास x जो है वो r cube को belong करे और y आपको आपका camera. r4 को belong करे. That is not possible. चले यहीं पे लिख देता हूँ मैं. It is not possible कि आपका x r cube को belong करे और y आपका r4 को belong करे. Then this addition is not defined. ठीक है? Because you cannot add the fourth component of this vector into there is no fourth component in this vector. Okay. So the elements should belongs to the same space. Right, sir. Okay. We can't take it to be. We can't suppose it to be equal to 0. Equal to 0. What 0? No, we cannot suppose it. Oh. This is not defined. It is undefined, you can say. Sure, sir. जी. Associative property में भी multiplication में यूज होता था x y z is equal to x y z. Yeah. हाँ. तो आपने उसमें भी इसी से रिलेटेड कुछ बात की थी. नहीं. तो अगर फ्री स्पेस दोनों तीनों की सेम हो तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ एप्लीकेट होते हैं. No, multiplication is still not defined here in for the vectors. Multiplication will define it later on. It could only be possible to multiply two vectors in Rn only in case if we take dot product of two vectors and cross product. Okay? But that is dot product of two vectors in Rn is associative. But that is a special kind of multiplication, not just multiplication which we do for matrices or some other numbers. Dot product is some special kind of multiplication. जी बेटा. No. ठीक है. So we'll discuss these things later on. So now associative property is this. Associative property last time मैंने आपको बताया था कि how to prove it. या prove नहीं की थी हमने. नहीं prove. So चलें. In order to prove the associative property, you just choose the left hand side x plus y plus z. Okay. Now you should know that if this x belongs to Rn, then its form should be what? x1, x2, so on xn. Okay. Plus bracket and then y plus यहाँ पे z आ जाएगा and then this. यहाँ पे y1, y2, so on yn and z1, z2, so on zn. Okay. This is you are trying to follow the procedure. Okay. पहले आपने left hand side choose किया, आपने यहाँ पे लिख दिया. Now you are trying to write the types of elements. ये किस type का element है? इस type का. Y इस type का है, Z इस type का. So these things are obvious. You should know these things. Nobody will tell you कि अगर आप X Rn को belong करता है तो X इस form का होगा. You should know it. ठीक है? Now what you do? You first इनको दो को element को add करें, फिर उसमें ये add करें तीसरा element, and then you shuffle the brackets and then open them, separate them. ठीक है? मसलन आप यहां से इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1 plus y1 plus z1. ओके. फिर x2 plus y2 plus z2, so on xn plus yn plus zn. ये आ जाएगा. ठीक है? So this is your after adding these two you get this. Now
I'm going to shuffle the bracket here. Y, x1 plus y1 plus z1. This is equal to this. And then x2 plus y2 plus z2, so on. यहाँ पे xn plus yn plus zn. Okay. Why I can shuffle this bracket? Why I can write this bracket on the first two elements? You have to give a reason to this. What is the reason in your opinion? जी बोले. सर हम उधर जैसे y plus z किया है individually, हम उधर x plus y भी कर सकते थे, तो वो दोनों एक ब्रैकेट में जाते थे जब z ऐड करते हो करें. नहीं. Any other? What is the reason? Why can we put this bracket, which was on y1 plus z1, why we can put it on x1 plus y1? Why can't we? Why can we do it? Because it's sort of a standardization. Basically, it is associative property. We can shuffle the bracket in addition. Sir, it's just because No. Because we Sir, are it's talking just- about the same operation. Sir, जी sir, बोले. in my opinion, it's because like if you're adding 1 plus 2 plus 3, you have to take two things together in order to add that up. So it doesn't matter which two things you take at first. You take the last two or you take the first two, because eventually they together, the three elements have to be added together in the vector. Let me explain you this thing now. If you say that x belongs to Rn, okay, then how do we define Rn? Rn is what? It belongs to it contains x vectors, okay, such that x1, x2, so on, xn, they are all real numbers. Yes, you agree with it? They're all real Yes, sir. numbers. Okay. Now, this is a special kind of space, which is n space. But individually, all the elements, these are real numbers. Now, if I say x1 plus y1 plus z1, so all these are real numbers. Associative law holds in real numbers. It is true. So that is why I can write x1 plus y1 plus z1. Because यहाँ पे आपने reason क्या देनी है? Because associative property, associative law holds in R. This is the actual reason why we can shuffle these brackets. Well, as a whole, this x vector belongs to Rn. But individually, every x1, y1, z1, they are real numbers. And real number is a set in which associative property holds. So that is why individually we can shuffle these brackets, but as a whole we cannot, because still we haven't proved that associative law holds in Rn. ठीक है? क्योंकि जो Rn है, that is a space which is basically made up of a space which is a real number, and in real number all these properties hold. So you have to use this kind of logic in order to shuffle these brackets. अब आपने shuffle कर ली, अब आप इसको खोल दें, open करें, ठीक है? Open करेंगे तो you will, how would you open it? आप इसको लिख सकते हैं further, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे x1 plus y1 and so on, xn plus yn plus z1, z2, so on, zn. And finally, you can open it and get x plus y bracket plus z, which is the right hand side. Okay, this one. So associative property can be proved in this way. I hope you get it. There are many other properties which we have to discuss. Now, the next two are very important. You have to understand the requirement in that property. ठीक है? क्या उसकी main spirit क्या है उसकी property की? आपने उस चीज को follow करना है.
Then when we'll discuss vector spaces, अगर आपको ये उस किसी भी प्रॉपर्टी की स्पिरिट समझ नहीं आई ना, तो फिर वेक्टर स्पेसेस में यही काम करना है, सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है डिफरेंट स्पेसेस के लिए। यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर स्पेस है Rn जिसके एलिमेंट्स इस टाइप के हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि Rn स्पेस नहीं है, कोई और स्पेस है, एंड यू हैव टू प्रूव ऑल दीज प्रॉपर्टीज फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो फिर आपने सारी प्रॉपर्टीज का जो बेसिकली स्पिरिट है, किस तरह, क्या मकसद क्या है उसका, ठीक है, क्यों प्रूफ कर रहे हैं, कैसे प्रूफ करना है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती देन यू कांट प्रूव इट। देन दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन योर लाइफ, द वेक्टर स्पेसेस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव लॉ की क्या स्पिरिट है कि 3 नंबर्स को आपने ऐड करना है, प्रूफ करना है कि किसी 2 को पहले कर लें, बाद में तीसरा कर लें। सो दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आपको रियल नंबर भी ले लें, आप 2 + 3 + 5, आप तीनों नंबर को इकट्ठे ऐड नहीं कर सकते, पहले किसी 2 को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। आपका जो माइंड सेटअप है ना, वो यही है कि पहले आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तीनों को इकट्ठे नहीं ऐड करते आप, पहले 2 को ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें तीसरा ऐड करते हैं, यही होता है ना। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, आई वांट टू एक्सप्लेन यू the properties. What is the purpose of that property? What is the spirit of that property and how to prove it? The next property is identity law. Identity element. Identity element is basically that element in some space, in some set. ठीक है, जैसे कि रियल नंबर्स में आइडेंटिटी, अच्छा, आइडेंटिटी अंडर एडिशन डिफरेंट होती है, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन, और यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रियल नंबर्स में अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा जो आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। अच्छा, लेट मी सी दैट कि Rn में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। 0 बार, set of vectors, an element of vectors which contains all the zeros, ये होगा। So it should be 0 0 so on 0। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम यूजुअली E बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, जरूरी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 0 वेक्टर हमेशा आइडेंटिटी हो, इट कुड बी डिफरेंट। अंडर एडिशन इसकी आइडेंटिटी 0 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, रियल नंबर्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, तो 1 होगी ना, कि आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज डिफरेंट एंड अंडर एडिशन इट इज डिफरेंट, ठीक है। एंड मेनी अदर स्पेसेस, आई विल गिव यू एग्जांपल्स, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनको भी जो है ना चेंज किया जाएगा कि आप 2 वेक्टर्स को इस तरह ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, आप किसी डिफरेंट तरीके से भी ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। वी विल चेंज बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ एडिंग 2 वेक्टर्स, वी कैन चेंज इट। मसलन आई यूजुअली गिव एन एग्जांपल इन दिस थिंग के आपके पास 2 इनपुट हैं किसी चीज की, अगर उसकी जो आउटपुट है, जैसे कि 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, वो आपका जो रिसीवर है उसने रिसीव किए, जो उसमें से तीसरा सिग्नल एक निकल रहा है या डाइवर्ट हो रहे हैं, जो तीसरे सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट हो सकती है। जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट जब किसी मिरर पे पड़ती है ना, तो कुछ लाइट जो है ना वो पास कर जाती है, कुछ जो है ना रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो इन सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपकी जो स्टैंडर्ड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो वर्क नहीं करती, यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। तो हम फिर देखेंगे कि ये चेंज होती है तो फिर कैसे हम इसको हैंडल करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को।
कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट में भी चेंज हो जाए, ठीक है। मसलन चलें ये बाद में करेंगे, अभी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें ये है। आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूव कैसे करना है कि ये वाकई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देन हाउ टू प्रूव इट। सो वी नीड टू प्रूव हियर दैट टू प्रूव this, for all x belongs to Rn, x plus e bar is equal to e bar plus x is equal to x. This is Sir, how ये we जो have to prove. जी जी बोले। सही सही, ये जो आप इन्वर्टेड ए लिखते हैं सर, इसका क्या मतलब हाँ, है? this means for all, थैंक यू सर। for all या for every element in Rn। देखिए आपने जब किसी जनरल प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है ना, तो दैट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए वो प्रूव नहीं हो रही, वी कैन नॉट से दैट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर दिस सेट। काउंटर एग्जांपल्स शायद आपने देखी हो। मैथमेटिक्स में किसी चीज को डिसप्रूव करना जो है ना, वो सबसे आसान है। आपने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कैसे करेंगे? आपने उसकी एक काउंटर एग्जांपल दे देनी है कि ये एग्जांपल है जिसके लिए ये ट्रू नहीं, बस काफी है। लेकिन अगर आपने प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, तो ये सबसे मुश्किल है। डिसप्रूफ करना बहुत आसान है। जैसे ये अभी बात नहीं चल रही थी कि चीटिंग जो करते हैं उनके लिए हजार तरीके हैं, बहुत आसान है उनके लिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जो मुश्किल उन्हीं के लिए होती है जो सीधे रास्ते पे होते हैं, ठीक है। तो सीधा रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, इसीलिए तो लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। वरना अगर ये इतना आसान होता तो वो चीटिंग क्यों करते थे? ठीक है, चीटिंग करना आसान है, सीधे रास्ते पे जाना हमेशा मुश्किल होता है। सो बहुत डीप बात कही है सर आपने। फॉर ऑल x belongs to Rn, x plus e is equal to e plus x is equal to 0, ठीक है। हमने क्या करना है? प्रूफ करना है कि x में e राइट हैंड साइड से ऐड करें या लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करें, एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज, किसी भी सेट में। जी बेटा बोलो। फॉर एग्जांपल अभी आई डोंट नो कि आप कैसे सवाल बनाते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी ए लेवल में पढ़ते हैं तो उसका सवाल था पार्ट ए में प्रूव करके x plus e equals to e plus x, हमने ये प्रूव कर लिया। उसके बाद हमें बोलता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करके देखो पार्ट सेकंड में। तो क्या ये हो सकता है? हमें फर्स्ट पार्ट से पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज कि x plus e is already equal to e plus x, तो हमें बस ये प्रूव करना है कि उसके थ्रू हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू x। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं हो रही। देखिए दिस प्रॉपर्टी e x plus e is equal to e plus x, ये हमें ये दोनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ, ये दोनों प्रूफ करेंगे क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ है। हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट e belongs to Rn, कि इस तरह का कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है R में, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि रियल नंबर जो है ना, R is equal to what? R is equal to sorry, let me define some other set. एक सेट है आपके पास, A सेट है, ठीक है, which is R minus 0 नेगेटिव या 0 10, ठीक है। ये एक सेट है, मैंने इसमें से 0 और 10 इंटरवल निकाल दिया। अब आप ये मुझे प्रूफ करके बताएं कि ये ए सेट जो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर एडिशन? है ही नहीं ना? जीरो ही नहीं है ना, आपने 0 निकाल दिया। जो ए सेट है उसमें 0 नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन 0 है, तो 0 इसमें है ही नहीं। तो आपने चेक करना है कि 0 है इसमें या नहीं। जैसे यहां पे आपने चेक करना है कि इस तरह का वेक्टर है इस Rn में या नहीं है। अगर है तो
कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाला मोस्ट ऑफ द स्पेसेस में करता है। लेकिन देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन यही बात करें हम, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिसेस में a इंटू बी या b इंटू ए ये वो सेम नहीं होते, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारे सेट्स में जो कि होल्ड नहीं करती। ठीक है, मैट्रिसेस में मसलन मैं एक सेट लिखता हूं, लेट m बी ए सेट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टेबल, m set of all 2 cross 2 invertible matrices। ठीक है, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल 2 cross 2 invertible matrices है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? No, sir. नहीं होगा ना। आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिसेस में क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा जिसकी ये एक एलिमेंट होगा जो कि बाकी मैट्रिसेस में ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सेट क्या है? एम सेट ऑफ ऑल 2 cross 2 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। अब ये वाला मैट्रिक्स तो इन्वर्टेबल ही नहीं है, तो ये तो उसमें नहीं आएगा। तो मींस इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है अंडर एडिशन। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने ये चेक करना होता है कि इस सेट पर्टिकुलर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द सेट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अंडर एडिशन और वो उस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेट। ठीक है, आई होप यू गेट इट नाउ। Just to clarify one thing, यस, हम ये प्रूव करें कि E exists in Rn या E exists in X। ई एग्जिस्ट इन Rn। स्पेस में चेक करना है ना आपने, जो आपका सेट है पूरा n स्पेस जो है आपकी। इसी तरह आप n स्पेस की जगह कोई और सेट ले लें, जैसे मैंने आपको ये बताया। इसमें आपने खुद सोचना है कि बाकी आपको ये सेट डिफाइन हुआ है। आप यू कैन नॉट डिफाइन दिस सेट। आपको ये पता नहीं है कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, लिख तो नहीं सकते ना इसको। आप इसको सिर्फ ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, या मैक्सिमम और कैसे कर सकते हैं। सेट एक तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक आप यू कह सकते हैं कि इसमें ए बी सी डी। ठीक है, या आप इस तरह ना करें, आप ए 2 cross 2 such that a 2 cross 2 is invertible। ठीक है, ये इससे ज्यादा तो आप डिफाइन नहीं कर सकते इस सेट को। अब आपने सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। मसलन इसी सेट के लिए आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर प्रूफ करनी है तो आप क्या करेंगे? आपने 3 मैट्रिक्स लेने, ए बी सी, तीनों क्या होने चाहिए? 2 cross 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। फिर आपने उन 2 cross 2 मैट्रिक्स की एंट्रीज डिफाइन कर देनी है, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4, ABC मैट्रिक्स। फिर आप उस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना स्टार्ट करें। मैंने आपको बताया ना, जिस तरह की सेट की नेचर होगी उसी तरह के एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं कि ए बी सी बिलोंग करते हैं एम को, ठीक है, तो नेचर ऑफ द सेट क्या है कि ए बी सी दोनों क्या है? तीनों 2 cross 2 मैट्रिसेस हैं और ये इन्वर्टिबल है। अब हमने इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है कि हम इसको यूं कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने a को डिफाइन करना है कि किस टाइप का है। a को हम कर देते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में फिर b प्लस c। ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें और राइट हैंड साइड पे चले। You have to prove it in this way. So you should know the spirit of that property, the nature of elements of that set particular space, and then you have to start proving it. This is what the identity element is. Next is inverse element. That is also a very good kind of a crucial kind of property. Inverse element. इनवर्स एलिमेंट की जो स्पिरिट है क्या है? कोई भी एक एलिमेंट है, अपने तमाम एलिमेंट्स के देखते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn,
there exist, you should know the language of mathematics as well. For all, this means for all, and this means there exist. Okay, this means there exist. There exist y belongs to Rn such that x plus y or y plus x is equal to identity element. Then y is equal to, यहाँ पे negative of x, basically this, is additive inverse of x. This is what we say. Additive inverse 2 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए रियल नंबर्स में? -2. तो -2 क्या है? उसका एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तमाम एलिमेंट्स के इन एडिटिव इनवर्स होने चाहिए Rn में, किसी भी स्पेस में, जब आप प्रूफ करते हैं कि इस स्पेस में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. ठीक है, जैसे कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर 10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -10. और -10 अगर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? +10. तो एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों साइड से एक दूसरे के इनवर्स है. सो एडिटिव इनवर्स होना चाहिए हर एलिमेंट का. मसलन अगर मैं एक सेट डिफाइन करता हूं ए आर प्लस इज व्हाट? पॉजिटिव रियल नंबर्स. इस सेट ए में एडिटिव इनवर्सेस हैं. 2 का इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स -2. तो -2 तो है ही नहीं इसमें. ठीक है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स नहीं है इस सेट में. ठीक है, अब अगर आपने ये देखना है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस अभी हमने जो डिफाइन किया था, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टिबल, उसमें एडिटिव इनवर्स चेक कर सकते हैं या नहीं? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, तो ए का एडिटिव इनवर्स -a -1 0 0 -1, ये होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा ना? है? Yes. कब होगा ये? कब होगा? जब ये खुद इन्वर्टिबल होगा. ये खुद इन्वर्टिबल है, ये भी तो चेक करना है ना हमने कि ये उस सेट को बिलोंग भी करता है या नहीं. इट शुड बी इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट. व्हाई? ये इसका इनवर्स नहीं है. Anyone, if you can tell me the reason of this, I can give you one absolute marks. क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो डिफाइंड नहीं है सेट में. जो हमारा 0 0 है ना मैट्रिक्स, वो हमारा उस सेट में डिफाइंड नहीं है. So what's your name? मुगीसुर रहमान. Huh? मुगीसुर रहमान. Mughithur Rahman. Okay, I'll give you एक number in your previous quiz 2. Your answer is correct. थैंक यू सर. मुझे याद करो ना, ईमेल कर देना, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर बता देना. हाँ जी, बोले आप में से. नहीं जी, नहीं, क्योंकि ये इसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स नहीं हो सकता. हालांकि 0 0 0 आ रहा है, लेकिन 0 0 0 इस सेट में है ही नहीं, तो कैसे आएगा? नहीं है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है. इफ यू डोंट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, हाउ कैन यू चेक इनवर्स एलिमेंट? So the first thing you need in order to check additive inverses, you should have identity element in that set. A 2 cross 2 जो matrices वाली थी, invertible matrices, उसमें identity element ही नहीं है.
So you cannot check this thing. ठीक है? So this is the correct answer. जो एक मुगीस ने बताया कि सर उसमें 0 0 0 है ही नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो you cannot check the inverse element. कौन से? ये वाली आरएन इसकी क्वेश्चन इन्वर्टिबल मैट सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो पहले मैंने लिखी थी वहां पे. सो इनवर्स एलिमेंट इस आरएन में तो होंगे. आरएन का कोई भी एलिमेंट लिख लें. मसलन मैं आरएन का लिखता हूं एक एलिमेंट आरएन है -1 10 10⁻10 -2 so on -0.001. ये एक एलिमेंट है इसका. इसका एडिटिव इनवर्स होगा? कोई भी एलिमेंट ले लें, इसमें तो अनकाउंटेबल किस्म के एलिमेंट्स है ना आरएन में. हमें ये चेक करना है कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है या नहीं. ठीक है, तो होगा. कैसे? अगर आप x को डिफाइन करते हैं x1 x2 so on xn, तो there must exist negative x bar which is negative x1 negative x2 so on negative xn. ये तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, है ना? और इस सेट में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी भी है. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी ना, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें. तो दिस होल थिंग विल बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट. सो देयर एग्जिस्ट इनवर्सेस फॉर ईच एलिमेंट. अब आप हर एलिमेंट को पकड़ के इस तरह हर एलिमेंट को लिख के उसका एडिटिव इनवर्स चेक तो नहीं कर सकते ना. You have to use some abstract kind of notation in order to prove it. हर एलिमेंट को आप इनवर्स लिखना शुरू कर दें तो मतलब हम सारे जो है ना उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आरएन के एलिमेंट्स नहीं खत्म होंगे. इवन 0 से 1 के दरमियान वाले एलिमेंट नहीं खत्म होंगे. तो ये तो नहीं कर सकते. You need to prove it by using some abstract kind of notation or elements. ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन मैथ्स में इसलिए यूज की जाती है या किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी या कोई भी एक्सियम आपने प्रूफ करनी है तो वो सारे एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं होता उस पर प्रूफ करना. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दिस एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ नोटेशन एंड सम अदर थिंग्स. आई होप यू गेट इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट. मुझे सर अभी तक वो वाला आइडेंटिटी एडिट वाला सर इतना क्लियरली समझ नहीं आता. और वैसे के लेक्चर में उसको दोबारा कर सकते हैं क्या? कर लेंगे, कोई बात. जब हम आगे चलेंगे ना वेक्टर स्पेसेस के टॉपिक पे, ये तो अभी हम यूक्लिडियन स्पेसेस पढ़ रहे हैं. दीज आर बेसिकली एनी स्पेस व्हिच सैटिस्फाई दिस bunch of properties that we'll call these kind of spaces a vector space. Okay, so the first thing which we are starting is a Euclidean vector space. अभी हमने 4-5 properties की हैं. Any vector space it satisfies I think 10 properties, 10 to 11 properties. अभी हमने इसमें इसके एलिमेंट्स पे और प्रॉपर्टीज को भी प्रूफ करना है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो देखनी है. तो अ बंच ऑफ आई थिंक 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट. जब इस तरह की उसके एलिमेंट्स जब सेटिस्फाई करते हैं, वी कॉल दैट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, अब सिर्फ ये वेक्टर स्पेस इस टाइप की नहीं होती आरएन. अभी मैंने आपको जैसे बताया वो एक और सेट हमने डिफाइन किया था, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस. अगर हम वो ले लेते, पहले हमने क्या डिफाइन किया था? सेट ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. अब मैं डिफाइन कर रहा हूं सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस. नाउ द सेट वुड बी डिफरेंट. वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, इनवर्सेस भी होंगे, सब कुछ होगा उसमें. ठीक है, क्योंकि उसमें वो कंडीशन हट गई है अब इन्वर्टिबल वाली. अब इन जनरल डिफाइन करते हैं सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, उसको प्रूफ करें, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएंगी. इट डिपेंड्स ऑन द सेट. तो फिर उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे. जब हम वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन कर लेंगे ना, उसके बाद फिर हम लीनियर सिस्टम पे वापस आएंगे. लीनियर सिस्टम्स
पे ही रहना है हमने। ये सारी चीजें हमें चाहिए लीनियर सिस्टम्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब हम ये क्यों वेक्टर्स क्यों डिफाइन किए हमने, क्योंकि लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशंस वेक्टर्स होते हैं, और जब इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आपके पास इनफिनिट मेनी वेक्टर्स होंगे। अब इनफिनिट मेनी वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसके सॉल्यूशंस डिफाइन करेंगे। फिर ये प्रॉपर्टीज इकट्ठी होकर वेक्टर स्पेसेस बन जाएंगी, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है लीनियर सिस्टम का, वो वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, उसका जनरेटिंग सेट क्या है, उसके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। So you need all these concepts in order to find more information from the solutions of linear systems. ठीक है? If you have any question, एक क्वेश्चन था जी जी बोले। सर, ये जो आपने पिछला एग्जांपल दिया था वो ए वाला जो था, उसमें आपने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। देखिए बेटा, 2x2 मैट्रिसेस हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, किसी सेट में हमने डिफाइन किया। उस सेट, एक सेट हमने डिफाइन किया है जिसमें 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? हम कहते हैं कि एक सेट है M, इसमें मैट्रिसेस हैं A such that A is a 2x2 invertible matrix, ठीक है। ये इस किस्म का सेट है। अब हम कहते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आप क्लेम कर सकते हो कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैन यू क्लेम इट? नहीं सर, हाँ नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्वर्टिबल नहीं है। हाँ, तो बस बात खत्म। नहीं इसमें सर, आइडेंटिटी वो जो एलिमेंट नहीं हो। आपने जो पिछला एग्जांपल दिया था ना, उसमें तो इन्वर्टिबल था ना, क्योंकि ए तो 1001 था और इसमें आपने ए को डिफाइन किया हुआ था एज r प्लस, तो मैं उसको हाँ। पूछ रहा हूँ। देखिए, इन्वर्टेबल तब चेक होता है, अब इसमें ये जीरो एलिमेंट है ही नहीं, ई एलिमेंट इसमें नहीं है, इट डजंट बिलोंग्स टू एम। आप Yes, sir. एग्री कर रहे हो ना? यस सर। फिर हम कोई भी सेट ले लें, ए कोई भी मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 लेते हैं, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1 0 0 -1, ये कह रहे हैं हम। लेकिन एडिटिव इनवर्स चेक करने के लिए इसको किसके इक्वल आना चाहिए? इसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए ना। यस सर। लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स इसमें है ही नहीं, इट डजंट बिलोंग्स टू इट। जी सर, आपने इसको डिफाइन एज इन्वर्टिबल किया हुआ है ना, बट अगर आपने डिफाइन इसको r पॉजिटिव से किया हुआ है तो फिर तो क्यों नहीं हो सकता? कौन सा? ये जो इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं? जी सर, लेकिन आपने इसमें डिफाइन m इज इक्वल्स टू जिस तरह किया हुआ है a इज 2/2 इन्वर्टिबल, अगर आपने इसको हाँ। डिफाइन a इज इक्वल्स टू r पॉजिटिव जो आपने पिछली हाँ। दफा, तो तब क्यों नहीं हो सकता? तब तो हो सकता है ना यार, ये सिर्फ इस सेट के लिए इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वी कैन नॉट चेक, ठीक है। अगर हम सेट की नेचर को चेंज करेंगे तो फिर तो इनवर्स हो सकता है ना ये उसका। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेबल की कंडीशन हटा दूं, A इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, इनवर्सेस भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेट। थैंक यू सर। सर, और पॉजिटिव में वो 0